So hey everybody, I welcome you to the MBBS Burger, and today we are going to start with the larynx. It's a very amazing topic, and always remember that long answer, short answer is always waiting for you in your prof exam from this topic. It's a very important topic. It's a very touched topic, and a good clinical correlation, laryngoscopy, सिंगर्स नोड्यूल लाइक दीज क्लिनिकल कोरिलेशन हैमरिच मनूवर मतलब जो इसे प्रोनाउंस करते हो, ठीक है। और साथ ही साथ वेरियस काइंड की लैरिंग्स के कुछ कार्टिलेजेस के बारे में पूछ लिया, नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई, आर्टेरियल सप्लाई, लिम्फेटिक ड्रेनेज एंड इवन दी मेम्ब्रेन्स, कार्टिलेजेस, वोकल फोल्ड्स, हाउ दी मतलब it's a very important topic. It's a very touched topic in NEET PG also. It's also having a great importance. It's a highly asked topic from the head and neck itself. And why this video is coming, because many of you were saying that we need larynx topic video. So here is a video of the larynx. See what kind of long question, what kind of the short question can be asked from this topic. Starting with the long question, see, it's a 15-mark question, and 15-mark question is very common in the universities from this topic. Okay, एक्चुअली डायरेक्टली विद अ क्लिनिकल केस, हेमलिच मनूवर का जो केस होता है उससे डायरेक्टली क्वेश्चन उठ के आ सकते हैं, या फिर जो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है ऐसा भी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हो सकता है. ओके, स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन आई प्रिपेयर्ड फॉर यू इज दी डिस्क्राइब व्हाई लैरिंक्स इज कॉल्ड द कार्टिलेजिनस बॉक्स एंड आल्सो एलैबोरेट एपिग्लॉटिस एंड थायरॉइड कार्टिलेज. वेरी इंपॉर्टेंट कार्टिलेजेस, एपिग्लॉटिस, थायरॉइड, क्रिकॉइड, वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, यू नीड टू प्रिपेयर देम. Write about the muscular framework of the larynx with their actions. Muscular framework, you need to know what kind of the muscular framework, what are the muscles, intrinsic, extrinsic, and what are their actions. You need to know them. Okay, describe the laryngeal inlet and laryngeal cavity. ये laryngeal inlet, laryngeal cavity, you need to know what kind of thing they are. And write about the blood and nerve supply. ये तो common question है almost. If about the tongue it is asking, then you have to mention it. If about the not epiglottis, but about any kind of the organ, any kind. Okay, so you need to answer about the olfaction. It is asking about the auditory pathway, middle ear, anything. You need to mention the blood and nerve supply. It is very important, going to be very important with the clinical correlations. Another question, the short questions which can be asked also are write about the membranes and ligaments. Ligaments and membranes are very important here. हेमलिक्स मनूवर, जैसे कि मैंने बोला आपसे, हेमलिक्स मनूवर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लिनिकल केस में हो सकता है दे दे, और फिर उसके बाद पूछ ले. इवन कई बार तो स्पॉटिंग में तक रख देते हैं, हेमलिक्स मनूवर की जो फोटो होती है उसे लगा दिया और बोला कि बताओ कौन सा मनूवर कर रहे हैं. एंड राइट अबाउट द रीमा ग्लोटाइटिस. ये वाला क्वेश्चन मैंने कहीं ना कहीं देखा है, किसी यूनिवर्सिटी के पेपर में देखा है मैंने. सो अगर आपकी यूनिवर्सिटी का में ऐसा क्वेश्चन आया रीमा ग्लोटाइटिस से रिलेटेड, काइंडली कमेंट. Okay, now starting with the first lecture of the larynx. As larynx is a very big topic, we are going to cover it in the two small parts so that you can easily watch them on the time of your exams. If you are just preparing it some hours before the exam, kindly try to watch it in the kindly try just to pick up the small points and see the screenshot of what is taught. Okay, if you are going to learn few things, and if you will be able to memorize it, it will be better. Okay, so starting with the first lecture of the larynx, and in the first lecture we are going to discuss about the muscles, ligaments, membranes, and about the cartilages. Okay, we are just discussing about the framework. Okay, and the second lecture we uploaded soon, covering the laryngeal inlet, cavity, clinical correlation, blood supply, venous supply, all that. Okay, remaining part. So starting with the introductory part of the larynx, that larynx is the cartilaginous box of upper respiratory tract, which is modified for producing sound, hence it is called as the voice box of the larynx. अब क्वेश्चन अगर मान लीजिए कार्टिलेजियस बॉक्स के ऊपर है, तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं दिस इज मॉडिफाइड फॉर द साउंड, और यह हैंड्स वैंस लगाने की वजह आप लोग लिख सकते हैं ड्यू टू इट्स कंपोजिशन ऑफ, बिकॉज ऑफ द कंपोजिशन ऑफ कार्टिलेजेस इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द कार्टिलेजियस बॉक्स. ओके, या फिर ये वाली लाइन को ऐड करके भी आप लिख सकते हैं द स्केलेटल फ्रेमवर्क ऑफ द लैरिंक्स कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ कार्टिलेजेस. इस तरीके से नहीं, इस तरीके से लिखो केवल, द स्केलेटल फ्रेमवर्क ऑफ द लैरिंक्स कंसिस्ट ऑफ कार्टिलेजेस is composed of cartilages. So 9 types of cartilages. That's why it is called as the cartilaginous box. Why it is called as cartilaginous box? It is answered. Why it is called as sound box, voice box? It is also answered because it is that part of the upper respiratory tract which is modified for producing the sound. मतलब ये वो पार्ट है जो कार्टिलेज का बना हुआ है और साउंड प्रोड्यूस करता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, लैरिंक्स बोलेंगे. इसका स्केलेटल फ्रेमवर्क में दो टाइप के कार्टिलेजेस हम बात करेंगे, पेयर्ड एंड अनपेयर्ड की. ओके, व्हाई 9 कार्टिलेजेस आई एम टेलिंग अबाउट. दीज आर दी पेयर्ड कार्टिलेजेस. सो टोटल 3 टाइप्स, सो 6 कार्टिलेजेस, and it is of 3 types. So total 3, 6 plus 3, it is 9. Okay, so 9 cartilages are totally present here. It is composed of 9 cartilages, no bone. Okay, no bone is there. Okay, so here is the paired cartilages. Paired cartilage, see, arytenoid, corniculate, cuneiform. These are the new words. Okay, remember then, very important, arytenoid, corniculate, cuneiform. Okay, asked question on the arytenoid, draw the diagram of the arytenoid. ठीक है, in the SGT, SDL, in this some quiz type, you will be definitely asked about the arytenoid cartilage. So kindly remember this arytenoid cartilage, it is important. And epiglottis, thyroid, cricoid, 3 of them.
literally very important. So let us come one by one and discuss each of them. Okay, starting with the thyroid cartilage. It is the most important cartilage. I must say you have to prepare it. It is the most prominent cartilage. See, most prominent means it is just telling about something which is easily seen in the males. Okay, and commonly in the जो पतले होते हैं ना, स्किनी मेल्स. यस, स्किनी मेल्स के अंदर दिखता है स्ट्रक्चर से एडम सेप्पल हम बोलते हैं. ओके, तो अब देखते हैं वो क्या है. कंसिस्टिंग ऑफ 2 क्वाड्रिलेटरल लेमिना. Okay, so thyroid cartilage is actually what is a prominent cartilage. It's the prominent cartilage. The prominence is seen as Adam's apple in the thin people. Okay, consisting of 2 quadrilateral. 2 quadrilateral lamina होते हैं. 2 quadrilateral मतलब 2 चौकोर. चौकोर लेमिना जब वो आपस में मिलते हैं तो एक एंगल बनता है. अब ये एंगल 90 डिग्री का होता है मेल से, इसलिए प्रोमिनेंस दिख जाता है. 120 का होता है फीमेल्स के अंदर, इसलिए उनके अंदर प्रोमिनेंस नहीं दिखता है. उस एंगल को हम थायराइड एंगल भी बोल देते हैं, और ये थायराइड एंगल ही एक्चुअली हमारे को एडम्स एप्पल की तरीके से दिखता है. देखिए, द थायराइड एंगल इज प्रोमिनेंट इन मेल्स कॉल्ड एडम्स एप्पल. क्लियर? लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ lamina I am talking about. See, the lamina I am talking about is this. This is the quadrilateral lamina which I am talking about. Actually, you are in the anatomy, everything is totally different. Don't consider these extra processes. Just consider it. It is looking like a rectangular box. Okay, so it is a quadrilateral box, and 2 quadrilaterals are joined at an angle. The angle between them is 90 degree if it is of male, and 120 degree if it is of female. And if it is of male, it can be seen as a prominent structure called as the Adam's apple. Okay. Now starting with the quadrilateral lamina, what kind of this structure is this? So we are going to study the attachments. Okay, very simple, very easy attachments are there. 2VT, obviously very simple. 2VT. Okay, 2VT को याद रखने का सिंपल तरीका 2V यानी कि vocal ligament and vestibular ligament. Okay, and we also know, if you have studied, if you are watching this lecture after knowing few things about the cartilages, okay, and vocal folds, vestibular folds, so you might be knowing these vocal folds and vestibular folds both are attached to the thyroid cartilage and start from the एरेटनॉइड वन. ठीक है, एरेटनॉइड कार्टिलेज से चालू करके वोकल पे आते हैं, सही थायराइड पर आते हैं, और ये देखो थायराइड पर आकर के अटैच होगा वोकल लिगामेंट, वेस्टिबुलर लिगामेंट. क्लियर है? एंड वन इज द थायरो एपिग्लॉटिक लिगामेंट, एंड वन इज द थायरो एपिग्लॉटिक लिगामेंट. ओके, now 2 muscles, vocalis muscle and thyroarytenoid muscle. Remember the name, nothing more difficult, just remember. जैसे कि थायरो एपिग्लॉटिक लिगामेंट एंड नीचे की तरफ क्या होंगे, वोकल लिगामेंट, वेस्टिबुलर लिगामेंट. ठीक है, और 2 मसल हैं, वोकालिस मसल है और एक और कौन सी मसल है बताओ? थायरोएरिटेनॉइड मसल है. थायरोएरिटेनॉइड मसल है. अब सिंपल तरीका इसको याद रखने का, दिमाग में लगा लेते हैं कि यार कोई भी अगर स्ट्रक्चर होगा थायराइड कार्टिलेज से ले तो थायरो तो आएगा ही आएगा. ठीक है, अब एक लिगामेंट है जो एपिग्लॉटिस से आ रहा है तो थायरो एपिग्लॉटिक लिगामेंट. क्लियर है? एक ऐसी मसल है जो एरेटनॉइड से आ रही है, थायरो एरेटनॉइड मसल. अच्छा, कुछ ऐसे लिगामेंट्स हैं जो एरेटनॉइड से चालू करके यहाँ पर अटैच है. यस, वेस्टिबुलर एंड वोकल लिगामेंट्स हैं, और एक मसल है जिसका नाम है वोकालिस मसल. ओके, और ये आपको आगे मालूम पड़ेगी थायराइड नोड का स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, बट लेट इट बी, इट वाज द thing of to be discussed in the in the second lecture. Okay, now what about the posterior border? Okay, let us see about the posterior border. So posterior border पर अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर अटैचमेंट होता है किस किस चीज़ का. देखो, पैलेटोफेरेंजियस, साल्पिंगोफेरेंजियस एंड स्टाइलोफेरेंजियस. ओके, let us see at the posterior border. Where is the posterior? See here. It is a good diagram to understand what are the attachments on the posterior. See, this is the posterior border and 3 muscles are going to attach here. First is the palatopharyngeus, salpingopharyngeus and stylopharyngeus. Clear है? और फिर इसके अलावा यहाँ पर एक बहुत प्रोमिनेंट लाइन होती है. अगर आप लोग कभी डायसेक्शन में जाओगे तो आपके टीचर आपको दिखाएंगे एक ऑब्लिक लाइन यहाँ पर क्लियरली विजिबल होती है. उस ऑब्लिक लाइन से भी स्ट्रक्चर कुछ अटैच होते हैं. ठीक है, तो ऑब्लिक लाइन पे भी कुछ स्ट्रक्चर होते हैं. आउटर सरफेस पर एक ऑब्लिक लाइन होती है, तो 3 मसल अटैच होती हैं, थायरोहायोइड, स्टर्नोहायोइड और थायरोफेरेंजियस पार्ट ऑफ द इंफीरियर कॉन्स्ट्रक्टर. ठीक है, इंफीरियर कॉन्स्ट्रक्टर का पार्ट है थायरोहायोइड, स्टर्नोथायरॉइड, सॉरी स्टर्नोहायोइड प्रेजेंट होती है. क्लियर है? 2 हायोइड से आने वाली मसल कौन कौन सी? स्टर्नो एंड थायरो. क्लियर है? स्टर्नो एंड, इतना सिंपल सी चीज़ है, आपको याद रख लेनी है. यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं स्टर्नोहायोइड नहीं, स्टर्नोथायरॉइड है, सॉरी मिस्टेक. स्टर्नो थायरॉइड में ही सोचा, थायरॉइड तो आएगा ही आएगा भाई, थायरॉइड से अटैचमेंट है, थायरॉइड तो आएगा ही आएगा. तो स्टर्नोथायरॉइड, थायरोहायोइड एंड थायरोफेरेंजियस पार्ट ऑफ द इंफीरियर कॉन्स्ट्रक्टर. ये तो आपको मालूम होना चाहिए. ठीक है, अगर आपने फेरेंक्स की वीडियो देखी आपको मालूम होगा ही. क्रिकॉइड कार्टिलेज की बात कर लेते हैं. अब क्रिकॉइड कार्टिलेज ये होता है एक सिग्नेट शेप्ड रिंग, मतलब रिंग की तरीके से होता है, और ये क्या होता है C6 वर्टिब्रा के लेवल पर होता है. इसका लेवल याद रख लेना, C6 वर्टिब्रा विद नैरो एंटीरियर आर्च एंड ब्रॉड पोस्टीरियर आर्च. मतलब इसकी एक बोल सकते हैं कैसा, समझ लो कि एंटीरियरली अगर आप पर्सन को आगे से मतलब जो फ्रंट से देखोगे तो वो कैसा पतला है, और पीछे से देखोगे तो ये बड़ा है. ठीक है, तो नैरो एंटीरियरली एंड ब्रॉड पोस्टीरियरली. क्लियर है?
इस तरीके का है। C6 वर्टिब्रा पर है नैरो एंटीरियर आर्च एंड ब्रॉड पोस्टीरियर आर्च एंड कंप्लीटली एनसर्कल्स द ल्यूमन ऑफ द लैरिंग्स। सी इट इज कंप्लीटली एनसर्कलिंग द ल्यूमन ऑफ द लैरिंग्स। क्लियर है? ओके, सो हियर इज दी, और आपको इसके अटैचमेंट्स जो है यहीं पर ही दे रखे हैं, तो आपको एज इट इज़ याद रख लेने हैं कि इसके जो अटैचमेंट है, इसका जो पोस्टीरियर पार्ट है, जो पोस्टीरियर आर्च है, उस पोस्टीरियर पार्ट मतलब जो ब्रॉड आर्च है उसके अंदर क्या क्या अटैचमेंट है यहाँ पर आप देख सकते हैं। थायराइड कार्टिलेज के लिए आर्टिकुलेशन दे रखा है थोड़ा सा लेटरली जा करके, और जो बिल्कुल एकदम पोस्टीरियर पीछे की तरफ टॉप मोस्ट पर सिचुएटेड है वो एरेटनॉइड के लिए। क्लियर है? वो किसके लिए? एरेटनॉइड के लिए। तो आप लोगों को याद रख लेना है इसके बारे में। ओके, नेक्स्ट आता है एपिग्लोटिस। अब हम एपिग्लोटिस के बारे में बात करने वाले हैं। दिस लिगामेंट इज लीफ शेप। अगर आप इसका आकार देखोगे तो कैसा होता है? लीफ शेप आकार होता है, ब्रॉड फ्रॉम दी अपर एंड पॉइंटेड फ्रॉम दी डाउनवर्ड्स। ओके, इसका अपर एंड कैसा होता है? फ्री होता है, एकदम मूवेबल होता है, और पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द टंग भी बनाता है। ठीक है, फ्रॉम दी सुपीरियर पार्ट ऑफ द लैरेंजियल इनलेट, साथ ही सुपीरियर पार्ट बनाता है लैरेंजियल इनलेट का भी। लोअर एंड कनेक्टेड टू दी थायरो एपिग्लोटिक लिगामेंट। क्लियर है? ये लिगामेंट का नाम याद रखो, थायरो एपिग्लोटिक लिगामेंट। और हम इस लिगामेंट को कहीं तो सुन करके आए हैं। यस, अभी मैंने आपको बताया था कि 2VT में एक लिगामेंट है थायरो एपिग्लोटिक लिगामेंट। अब आप लोग समझ लो कि एपिग्लोटिस को थायराइड से कनेक्ट करने के लिए एक लिगामेंट काम आता है, वो क्या नाम है? थायरो एपिग्लोटिक लिगामेंट। क्लियर है? तो थायरो एपिग्लोटिक लिगामेंट का काम भी आप लोगों को समझ में आ गया कि क्या करने का आता है। एंटीरियर सर्फेस ऑफ द एपिग्लोटिस इज कनेक्टेड टू टंग वाया मीडियन एंड लेटरल ग्लॉसो एपिग्लोटिक फोल्ड। नाम याद रखना, ग्लॉसो बेसिकली टर्म यूज होता है टंग के लिए, एपिग्लोटिक यूज होता है एपिग्लोटिस को डिनोट करने के लिए। तो मीडियन एंड लेटरल ग्लॉसो एपिग्लोटिक फोल्ड, और मीडियन जो होता है वो डिप्रेशन ऑन ईच मीडियन ग्लॉसो एपिग्लोटिक फोल्ड, जिसे वेलिकुला बोलते हैं। इतना भी अगर आप लिखोगे तो ही दिक्कत नहीं है। मीडियन एपिग्लोटिक फोल्ड थोड़ा थिक होता है, उसके ऊपर 2 डिप्रेशन होते हैं, उन डिप्रेशन को हम लोग क्या बोलते थे? वेलिकुला बोलते थे। सिंपल एज दैट, नथिंग मोर देन दैट। अब कई यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एरेटनॉइड कार्टिलेज के ऊपर पूरा ज्ञान मांग लेते हैं, तो भाई एरेटनॉइड कार्टिलेज को देखो, इट इज़ दी पेयर्ड पिरामिडल कार्टिलेज। कैसा है? पेयर्ड पिरामिडल कार्टिलेज होता है। इसका बेस, एपेक्स और 3 सर्फेसेस होती हैं, एंटेरोलेटरल, मीडियल एंड पोस्टीरियर सर्फेस। ठीक है, अब देखते हैं कि करके बेस जो होता है कॉनकेव होता है फॉर इट्स आर्टिकुलेशन टू क्रिकॉइड कार्टिलेज। ये वाली बात मैंने अभी आपको बताई थी कि क्रिकॉइड कार्टिलेज एक रिंग की तरह है, उसका पोस्टीरियर पार्ट थोड़ा ब्रॉड होता है। लेटरल साइड पर आपका जो होता है क्रिकॉइड के थायराइड कार्टिलेज आकर के होता है, ऊपर की तरफ कौन होता है? एरेटनॉइड होता है। क्लियर है? अगर हम यहाँ पर देखोगे तो एरेटनॉइड कार्टिलेज के भी यहाँ पर आपको आर्टिकुलेशंस देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो एरेटनॉइड कार्टिलेज के यहाँ पर जो आर्टिकुलेशन होता है तो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया कि एरेटनॉइड कार्टिलेज यहाँ पर आर्टिकुलेट करता है। ठीक है, तो किससे करेगा? बेस से करेगा। ओके, बेस डायरेक्ट और 2 प्रोसेस। अब इसके बेस से भी 2 प्रोसेसेस निकलती है, एक होती है मस्कुलर, एक होती है वोकल। क्या होती है? मस्कुलर और वोकल। अब ये जो मस्कुलर प्रोसेस होती है ये लेटरली होती है, मस्कुलर थोड़ी सी ऐसे मतलब लेटरल साइड में निकली होती है, और वोकल जो होती है फॉरवर्ड आगे की तरफ निकली हुई होती है। क्लियर है? जो इसका एपेक्स होता है वो कैसा होता है? कर्व्ड पोस्टीरो मीडियली। वो कैसा होता है? पोस्टीरो मीडियल कर्व्ड होता है। ठीक है, टॉप से भी कर्व्ड होता है, देखने में आपको लग रहा होगा। फॉर इट्स आर्टिकुलेशन विद द कॉर्निक्यूलेट कार्टिलेज। अब अगर आप लोग लैरेंजियल इनलेट ओपनिंग का अगर आपको आइडिया है तो कॉर्निक्यूलेट वो भी दिखती है यहाँ पर, फोल्ड दिखते हैं। ठीक है, तो कॉर्निक्यूलेट कार्टिलेज का होता है एपेक्स पर होता है, तो याद रख लेना आप लोग कि एपेक्स जो होता है आर्टिकुलेट कॉर्निक्यूलेट कार्टिलेज। क्लियर है? ओके, तो ये रही हमारे पास वोकल प्रोसेस, ये रही मस्कुलर प्रोसेस। मस्कुलर प्रोसेस जो होती है वो लिटरली होती है, वोकल प्रोसेस सामने की तरफ होती है, और इसके ऊपर की तरफ क्या होता है? एपेक्स होता है। एपेक्स पर क्या प्रेजेंट होता है? कॉर्निक्यूलेट कार्टिलेज। अगर आप इतना बोल लोगे साथ में बहुत अच्छा रहेगा और यहीं याद हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं लिगामेंट्स एंड मेम्ब्रेन्स ऑफ लैरिंग्स। बहुत सिंपल होने वाला है, देखो ध्यान से एकदम। द स्केलेटल फ्रेमवर्क इज कनेक्टेड बाई वेरियस लिगामेंट एंड मेम्ब्रेन्स। ठीक है, अब अगर हम इनको ब्रॉडली क्लासीफाई करना चाहें तो इसे इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक बोल सकते हैं। पहले एक्सट्रिंसिक की बात करेंगे तो यार कुछ एक्सट्रिंसिक स्ट्रक्चर है, पहले उन्हीं की बात कर लेते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ एपिग्लोटिस को हायोइड बोन से कनेक्ट करने के लिए, ठीक है, एक लिगामेंट है जिसका नाम है हायो एपिग्लोटिक लिगामेंट। याद है? ओके, अगर नहीं मालूम है तो देखो यहाँ पर देखो, ध्यान से देखो, हायो एपियो, नाम बिल्कुल एकदम सिमिलर है, हायो एपिग्लोटिक लिगामेंट, खत्म। एपिग्लोटिस को थायराइड कार्टिलेज से बताया था, थायरो एपिग्लोटिक लिगामेंट पोस्टीरियर पार्ट पर अटैचमेंट बताया भी था। हायोइड बोन का थायराइड कार्टिलेज पर अटैचमेंट दिखाने के लिए थायरो हायोइड लिगामेंट पोस्टीरियर लेमिना प्रेजेंट होता है। ठीक है, थायरो हायोइड लिगामेंट के बारे में बताया भी था, देखो ये रहा थायरो हायोइड लिगामेंट, ये रहा देखो थायराइड लिगामेंट पोस्टीरियर नहीं सॉरी उस पर था, ऑब्लिक लाइन पर था थायरो हायोइड लिगामेंट, देखो दिख रहा है थायरो हायोइड। ओके, नेक्स्ट थायरो हायोइड के बाद अगला क्या आता है आपके पास? थायराइड कार्टिलेज को क्रिकोइड कार्टिलेज पर अटैच करने के लिए क्रिकोथायरॉइड लिगामेंट। ठीक है, क्रिकोथायरॉइड लिगामेंट, क्रिकोथायरॉइड लिगामेंट। क्लियर है? और क्रिकोइड कार्टिलेज को ट्रेकिया से करेक्ट क्रिकोट्रेकिया लिगामेंट। अब यार एक बार सर हमारे को इसमें दिखा दो डायग्राम में, और ये डायग्राम एज इट इज रट लेना, इस वाले डायग्राम को छोड़ के मत आ जाना। ठीक है, ध्यान से देखो, ये हायोइड बोन है, हायोइड बोन से ये वाला एक एपिग्लोटिस दिख रहा है आपको, एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस देखो हाई एपिग्लोटिक लिगामेंट, और ये वाला कौन सा होगा बताओ? ये वाला जो होगा हायो, और ये क्या थायरो, तो थायरो हायोइड लिगामेंट। ठीक है, ये वाला जो है एपिग्लोटिस है, एपिग्लोटिस का ये टिप पार्ट है, ये क्या थायराइड है, तो यहाँ पर ये कौन सा आएगा? थायरो एपिग्लोटिक लिगामेंट है। इसके अलावा आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि थायराइड को
क्रिकोइड से कनेक्ट करने के लिए क्रिकोथायरॉइड लिगामेंट आपको दिखने के लिए मिल रहा है। क्रिकोथायरॉइड लिगामेंट को ये रहा, क्रिकोथायरॉइड मेम्ब्रेन बोलो, लिगामेंट बोलो, ठीक है, ओके। और जो आपका ट्रेकिया से कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर क्या होता है, क्रिकोट्रेकियल लिगामेंट होता है, वो ये रहा, क्रिकोट्रेकियल लिगामेंट, क्लियर है, ओके। नेक्स्ट स्टार्टिंग विद द थायरोहाइड लिगामेंट एंड दी मेम्ब्रेन्स। अटैचमेंट की बात करेंगे, थायरोहाइड लिगामेंट बहुत इंपॉर्टेंट लिगामेंट होने वाला है, क्लियर है। तो थायराइड लिगामेंट की बात करेंगे तो अपर बॉर्डर ऑफ दी हायर्ड बोन से लेकर के अपर बॉर्डर ऑफ दी थायराइड कार्टिलेज तक, देखो ये रहा थायराइड कार्टिलेज के ऊपर से इसके ऊपर तक, ठीक है। तो दिस लिगामेंट इज कॉन्केव बिहाइंड दी हायर्ड बोन टू अकोमोडेट सब हायर्ड बर्सा। इसके पीछे एक बर्सा होता है, इसका नाम होता है सब हायर्ड बर्सा, जैसे कि यहाँ पर आप लोग इसे देख सकते हैं, क्लियर है। तो ये कॉन्केव होता है। तो अब यहाँ पर हमारे को एक बात और याद रखनी है, थायरोहाइड लिगामेंट जो होता है उसके दो फोल्ड्स बनते हैं, लेटरल और मीडियन फोल्ड्स बनते हैं। उन लेटरल और मीडियन फोल्ड्स को अगर आप लोग देखोगे तो उन्हें स्पेशल नाम दे दो लेटरल एंड मीडियन थायरोहाइड लिगामेंट, क्लियर है। और जैसे कि मैंने आपको बताया शुरुआत से कि थायरोहाइड लिगामेंट जो है वो थायराइड मेम्ब्रेन से लेकर हायोइड, ठीक है, थायराइड कार्टिलेज से लेकर के हायोइड बोन के बीच में एक लिगामेंट है थायरोहाइड, उसके पास ही एक बर्सा है जिसका नाम है सब हायोइड बर्सा, क्लियर, सब हायोइड बर्सा। अब यहाँ पर एक बात आप लोगों को याद रखनी है, लेटरल थायरोहाइड लिगामेंट जो होता है उसको पायर्स करती है इंटरनल लेरेंजियल नर्व एंड सुपीरियर लेरेंजियल वेसल। दिमाग में बैठा लो इन दोनों नाम को, पीजी में आज तक बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आपको याद रख लेना है कि लेटरल थायरोहाइड लिगामेंट को कुछ चीजें पियर्स करती हैं, उन पायर्स करने वाली चीजों का नाम क्या है, इंटरनल लेरेंजियल नर्व एंड सुपीरियर लेरेंजियल वेसल्स। इंटरनल लेरेंजियल नर्व एंड सुपीरियर लेरेंजियल वेसल वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत अच्छा भी टॉपिक है, ध्यान से सुन लेना। द लेटरल थायरोहाइड लिगामेंट कंटेन स्मॉल नोड्यूल्स ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज कॉल्ड एज द कार्टिलेजिको ट्रेट्रिका। ये नाम भी याद रख लेना। कार्टिलेजिको ट्रेट्रिका क्या चीज होती है, दीज आर जस्ट दी स्मॉल नोड्यूल्स ऑफ द इलास्टिक कार्टिलेजेस प्रेजेंट विद इन द लेटरल थायरोहाइड लिगामेंट। लेटरल थायरोहाइड लिगामेंट बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनता है। अब बोल सकते हैं एमसीयू के अंदर कि बताइए कौन कौन सी चीजें पायर्स करती है लेटरल थायराइड लिगामेंट को। मतलब अब हम सर्जरी करने गए, अब सर्जन है लेटरल थायराइड लिगामेंट सर्जरी करने गए, कट लगाया गलती से, नर्व कट हो गई, नाम बताइए उस नर्व का, इंटरनल लेरेंजियल नर्व। अब इंटरनल लेरेंजियल नर्व का कौन कट हो गई तो कौन से कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। अब लेटरल थायरोहाइड लिगामेंट जो होने वाला है वो कंटेन्स करता है स्मॉल नोड्यूल्स ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज जिसको हम लोग बोलते हैं कार्टिलेजिको ट्रेट्रिका, क्लियर है। नेक्स्ट अब कुछ इंट्रिंसिक लिगामेंट्स होने वाले हैं, दो तरीके के मेजर होते हैं, क्वाड्रेट मेम्ब्रेन एंड क्रिकोवोकल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले बात करते हैं, पढ़ लेते हैं क्या लिख रहा है, द इंट्रिंसिक लिगामेंट फॉर्म्स द इनर सरफेस ऑफ द लेरेंजियल ट्यूब, इट इज इंटरप्टेड बाय अ साइनस ऑफ द लैरिंक्स, द मेम्ब्रेन अबव इट इज कॉल्ड एज द क्वाड्रेंगुलर क्वाड्रेट मेम्ब्रेन एंड बिलो इट इज कॉल्ड एज द क्रिकोवोकल मेम्ब्रेन। तो मतलब ऊपर की तरफ जो मेम्ब्रेन है उसे मैं क्वाड्रेट या क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन बोलूंगा और जो नीचे की तरफ मेम्ब्रेन होने वाली है उसे मैं क्रिकोवोकल मेम्ब्रेन बोलूंगा। सो नाउ गोइंग टू स्टार्ट विद द क्वाड्रेट मेम्ब्रेन। क्वाड्रेट मेम्ब्रेन का अगर मैं सुपीरियर अटैचमेंट बोलूंगा तो वो होता है एपिग्लॉटिस। अगर मैं बोलूंगा आपसे कि यार एंटीरियर अटैचमेंट होता हो तो उसका होने वाला पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द थायराइड कार्टिलेज। साथ ही साथ अगर मैं आप लोगों से बोलूंगा कि सर पोस्टीरियर अटैचमेंट होता है, पोस्टीरियर अटैचमेंट में लेटरल सरफेस ऑफ द एरेटनॉइड कार्टिलेज। और अगर लोअर बॉर्डर की बात करूंगा तो वो फ्री होता है। तो क्वाड्रेट मेम्ब्रेन का जस्ट अटैचमेंट इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, याद रख लेना। साथ ही साथ इसका जो लोअर बॉर्डर होता है वो थिकन टू फॉर्म दी वेस्टिबुलर लिगामेंट। ये वाला सर जो फ्री बॉर्डर है ये थिक हो जाता है और क्या बनाता है, वेस्टिबुलर लिगामेंट। अब एक बार इस डायग्राम में भी बहुत अच्छे से देख लेते हैं क्वाड्रेंगुलर या क्वाड्रेट मेम्ब्रेन को। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि सर ये रहा एपिग्लॉटिस सुपीरियर अटैचमेंट पे, ये रहा सर एंटीरियर अटैचमेंट में आपका थायराइड ये थायराइड कार्टिलेज और ये देखिए पोस्टीरियर सरफेस है थायराइड कार्टिलेज का भी। यहाँ पर आप देख सकते हैं एरेटनॉइड कार्टिलेज का जो लेटरल सरफेस है थोड़ा सा पोस्टीरियर सरफेस भी आकर के अटैचमेंट लेता है। और ये वाली बात आप देख सकते हैं आराम से कि नीचे का जो बॉर्डर फ्री है वो थिकन है, थिक हो गया है टू फॉर्म दी वेस्टिबुलर लिगामेंट। क्या आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, क्या इजीली ये वाला डायग्राम हमारे को धीरे धीरे याद हो रहा है, बिल्कुल याद हो रहा है सर। नेक्स्ट आती क्रिकोवोकल मेम्ब्रेन। क्रिकोवोकल मेम्ब्रेन की बात करूंगा तो यार देखो इसका जो हमारे पास पोस्टीरियर सरफेस होती है थायराइड कार्टिलेज है वो कौन सा अटैचमेंट होता है, आपको जो थायराइड कार्टिलेज पहले कौन सा था, एंटीरियर अटैचमेंट, एंटीरियर अटैचमेंट ये बना देगा। वोकल प्रोसेस होती है एरेटनॉइड कार्टिलेज, इसका बनाएगी पोस्टीरियर अटैचमेंट और नीचे की तरफ जो होगा डाउनवर्ड वो बनाने वाला है क्रिकॉइड कार्टिलेज। अपर बॉर्डर ऑफ द आर्च होता है क्रिकॉइड कार्टिलेज। देखो यहाँ पर क्रिकॉइड कार्टिलेज की आर्च ये ऊपर वाली ये क्या बना रही है, इसका इंफीरियर अटैचमेंट, सुपीरियर बॉर्डर इज फ्री एंड इट इज कॉल्ड एज द वोकल फोल्ड, क्लियर है। द अपर बॉर्डर कम्स टू फॉर्म द वोकल फोल्ड्स, क्लियर है इतनी बात। अब यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं मसल्स ऑफ द लैरिंक्स और मैं आपको बता दूं अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम होने वाला है ये, आपको एज इट इज याद रख लेना। जस्ट एक बार और मैं आपको सारे मेम्ब्रेन्स और कार्टिलेज रिवाइज करा देता हूँ, सिंपल तरीके से एकदम रिवाइज कराऊंगा। आप याद रखो पहले कुछ स्ट्रक्चर्स को, जैसे कि आपका याद है एपिग्लॉटिस, थायराइड कार्टिलेज, क्रिकॉइड कार्टिलेज, एरेटनॉइड कार्टिलेज, पहले इन चारों को बहुत अच्छे से याद रख लो। अगर सर मैं बोलूंगा एपिग्लॉटिस से लेकर के थायराइड कार्टिलेज, एपिग्लॉटिस थायराइड कार्टिलेज, आपको एक बार में स्ट्राइक करना थायरो एपिग्लॉटिक लिगामेंट, ठीक है। एपिग्लॉटिस से थायराइड कार्टिलेज तो आपको थायरो एपिग्लॉटिक लिगामेंट याद होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। मैं बोलूंगा आपसे कि यार थायराइड से लेकर के क्रिकॉइड तो आपको याद होना चाहिए क्रिकोथायरॉइड लिगामेंट, क्या नाम याद होना चाहिए, क्रिकोथायरॉइड लिगामेंट याद होना चाहिए। अगर मैं आपसे बोलूंगा कि सर क्रिकॉइड कार्टिलेज से ट्रेकिया तो आपको मालूम होना चाहिए क्रिकोट्रेकियल लिगामेंट के बारे में। यहाँ पर आप मेंशन भी कर सकते हो क्रिकोट्रेकियल लिगामेंट के बारे में, आप लोग चाहो तो मेंशन कर लो,
ठीक है, आप क्रिकोट्रेकियल लिगामेंट के बारे में मेंशन कर सकते हो। ओके, फिर मैं अगर आपसे बोलता हूँ कि यार आप लोगों को मालूम चाहिए एपिग्लॉटिस से लेकर हाइड बोन, तो आपको मालूम होना चाहिए कौन सा लिगामेंट, हायो एपिग्लॉटिक लिगामेंट, और मैं बोलूँगा आपसे हायोइड बोन से लेकर के थायराइड। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट कार्टिलेज होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट थायरो हायोइड, क्या नाम है, थायरो हायोइड, और ये दोनों याद रखना, अपर बॉर्डर ऑफ दी थायराइड एंड अपर बॉर्डर ऑफ दी हायोइड, ध्यान रख लें दोनों। और ये कॉन्केव होता है टू अकोमोडेट, एक बर्सा है यहाँ पर, इसका नाम है सब हायोइड बर्सा है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको एक स्ट्रक्चर और याद रख लेना है, लेटरल थायरो हायोइड लिगामेंट के बारे में, और इसके अंदर कुछ होते हैं जगह, ये देखो अभी मैंने आपको स्ट्रक्चर कंटेंट बताए थे, कंटेंट थे इंटरनल लेरेंजियल नर्व एंड दी सुपीरियर लेरेंजियल वेसल्स थायरो हायोइड लिगामेंट के अंदर, लेटरल थायरोइड मेम्ब्रेन के अंदर। सो नाउ स्टार्टिंग विद द मसल्स ऑफ द लेरिंग्स। तो ये देखो इस मसल्स ऑफ द लेरिंग्स में हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक मसल्स। अगर मैं एक्सट्रिंसिक मसल्स की बात करूंगा तो ये वाली मसल तो तुम्हें सारी पढ़ा दी मैंने, पैलेटोफेरेंजियस, साल्पिंगोफेरेंजियस, स्टाइलोफेरेंजियस, थायरोहाइड, स्टेनोथायराइड। अगर तुमने मेरे लेक्चर्स देखे हैं, फेरिंग्स का देख लिया, साथ ही साथ तुम शुरुआत से लेक्चर देख रहे हो तो तुम्हें मालूम होंगी वाली कहीं ना कहीं तुमने मसल सुनी, सर थायराइड कार्टिलेज में सुनी है तुमने, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं आपसे इंट्रिंसिक मसल्स की, तो इंट्रिंसिक मसल्स को तीन फंक्शन याद रखो पहले तो। तीन फंक्शन क्या है सर, ओपन एंड क्लोजिंग ऑफ द लेरिंजियल, एडक्शन एंड एबडक्शन ऑफ द वोकल कॉर्ड्स, एंड इंक्रीज एंड डिक्रीज द टेंशन ऑफ द वोकल कॉर्ड्स, क्लियर है। अब मैं अगर आपसे बोलता हूँ कि दैट ओपन्स और क्लोजेस द लेरेंजियल इनलेट, सिंपल है, ऑब्लिक एरिथनॉइड एंड एपिग्लॉटिकस, याद रखने और क्लोज कर दिए। याद रखने का तरीका क्या, ओ ए क्लोज कर, ओ ए गेट को क्लोज करते बोलते हैं, ओ ए गेट को क्लोज कर, ऐसी लेरेंजियल नेट को क्लोज करने के लिए कौन आएगी, ऑब्लिक एरिथनॉइड एंड एरिया एपिग्लॉटिकस, ओ ए ऑब्लिक एरिथनॉइड एंड एरिया एपिग्लॉटिकस। साथ ही साथ आप लोग यहाँ पर देखो थायरो एपिग्लॉटिकस भी है जो ओपन करती है, ओपन के लिए कौन है, थायरो एपिग्लॉटिकस। अच्छा चीज, कोई भी चीज को अगर ओपन करते हो, बॉडी में ओपन करते हो, ओटी में ओपन करते हो, तो ओटी ओपन एंड थायरो एपिग्लॉटिकस, देखो आसानी से हो गया। ओके, नेक्स्ट आता है मसल्स दैट एडक्ट एंड एबडक्ट दी वोकल कॉर्ड्स। एडक्शन के लिए आती है लेटरल एरिथनॉइड, ट्रांसवर्स क्रिको एरिथनॉइड, और एबडक्शन तो इतना इंपॉर्टेंट है इसमें, ओनली एबडक्टर ऑफ दी वोकल कॉर्ड इज पोस्टीरियर क्रिको एरिथनॉइड। अगर आपका वाइवा में अगर आपसे लैरिंग्स से सबसे पहले कोई सवाल पूछा जाएगा तो वो यही पूछा जाता है, ओनली एबडक्टर ऑफ दी लैरिंग्स बताइए, पोस्टीरियर क्रिको एरिथनॉइड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, मतलब पूरे लैरिंग्स में मैंने कहीं बोला ही नहीं कि जिसको सबसे ज़्यादा याद रखना। एक तो मैंने बोला था, अगर आपको याद हो तो कंटेंट बोले थे मैंने आपसे थायरोहाइड मेम्ब्रेन के, ठीक है, जो उसको पायर्ट्स करते थे। अब ये बोल रहा हूँ एबडक्शन से पोस्टीरियर क्रिको एरिथनॉइड, क्लियर है। मसल्स दैट इंक्रीज और डिक्रीज दी टेंशन में आती है क्रिकोथायरॉइड एंड वोकैलिस मसल जो टेंस करती है, और थायरो एरिथनॉइड जो कि रिलैक्स करती है। क्या करती है, थायरो एरिथनॉइड रिलैक्स। और मैं क्यों बोल रहा हूँ कि एबडक्टर इतना इंपॉर्टेंट है वो अभी आपको नीचे वीडियो के अंदर और अच्छे से मालूम पड़ जाएगा। बट स्टार्टिंग विद द थिंग दैट see some students love to learn the insertion and origin also. Okay, so here are the origin and insertion for them. Cricothyroid, it is on the cricoid cartilage, and it is also inserted into the inferior cornu of the hyoid bone, so of the thyroid, नहीं of the hyoid है, और साथ ही साथ अगर आप लोग देखो थायराइड कार्टिलेज पर भी आती है, क्लियर है। नेक्स्ट आती है ऑब्लिक एरिथनॉइड, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एरिथनॉइड कार्टिलेज पर है, साथ ही साथ एपेक्स ऑफ अपोजिट एरिथनॉइड कार्टिलेज, ठीक है, मस्कुलर प्रोसेस से चालू करके और एपेक्स पर जाती है। एरी एपिग्लॉटिकस वही मस्कुलर प्रोसेस से चालू करके मार्जिन ऑफ द एपिग्लॉटिस, ठीक है। ट्रांसवर्स एरिथनॉइड को देखोगे, ट्रांसवर्स पोस्टीरियर सरफेस ऑफ वन एरिथनॉइड टू पोस्टीरियर सरफेस अनदर एरिथनॉइड। ओके, लेटरल क्रिकोथायरॉइड क्रिको एरिथनॉइड, ये होती है लेटरल पार्ट ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द क्रिकोइड आर्च फ्रॉम द मस्कुलर प्रोसेस ऑफ द एरिथनॉइड कार्टिलेज। यहाँ पर अगर आप लोग देख पा रहे हो तो यहाँ पर दे रखी है ये वाली आपसे पोस्टीरियर क्रिकोइड एरिथनॉइड, ट्रायंगुलर मसल होती है पोस्टीरियर सर्फेस क्रिकोइड लेमिना लेटरल टू द मीडियन रेंज, मतलब क्रिकोइड से मस्कुलर प्रोसेस ऑफ द एरिथनॉइड कार्टिलेज पर जाती है, क्लियर है। थायरो एरिथनॉइड, थायराइड कार्टिलेज से लेकर के एरिथनॉइड पर आई है, एंटीलेटरल सरफेस पर आती है एरिथनॉइड के। थायरो एपिग्लॉटिकस को देखोगे तो पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द एंगल ऑफ द थायराइड कार्टिलेज टू द मार्जिन ऑफ द एपिग्लॉटिस। इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते ऑरिजिन इंसर्शन, इसमें इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ ताकि एटलीस्ट अगर आप उनको याद रख ले तो आपका काम चल जाएगा। जैसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसके अंदर ट्रांसवर्स एरिथनॉइड, सबसे आसान भी हो सबसे इंपॉर्टेंट भी होता है, ठीक है। याद रख लेना, रेक्टेंगुलर मसल होती है और पोस्टीरियर सरफेस ऑफ दोनों एरिथनॉइड पर होती है। साथ ही साथ लेटरल क्रिको एरिथनॉइड इंपॉर्टेंट, सही पोस्टीरियर है, पोस्टीरियर क्रिको एरिथनॉइड इंपॉर्टेंट होता है। पोस्टीरियर क्रिको एरिथनॉइड ट्रायंगुलर मसल होती है, ये क्रिकोइड लेमिना पर होती है। क्या होती है, क्रिकोइड लेमिना पर होती है, लेमन ऑफ द क्रिकोइड, ठीक है, लेमन ऑफ द क्रिकोइड ऐसे याद रखो, लेमन ऑफ द क्रिकोइड कार्टिलेज से एरिथनॉइड कार्टिलेज, ठीक है। मस्कुलर प्रोसेस बैक साइड ऑफ द मस्कुलर प्रोसेस, या पोस्टीरियर है तो पोस्टीरियर साइड ऑफ द एरिथनॉइड कार्टिलेज, क्लियर है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर आप लोग इसका डायग्राम इजीली देख सकते हो जिससे कि आप लोगों को आसानी से आ जाए। देखो पोस्टीरियर पीछे की तरफ आ गई, पोस्टीरियर क्रिको एरिथनॉइड आगे की तरफ चली जाती है लेटरल, तो देखो लेटरल क्रिको एरिथनॉइड में देखो फ्रॉम दी फ्रंट ऑफ द मस्कुलर प्रोसेस, ये कहाँ से आएगी, बैक ऑफ द मस्कुलर प्रोसेस से। आप देखो ऊपर की तरफ भी कुछ अराइज होती हुई दिख रही है, दो मसल्स कौन कौन सी, एक है वोकैलिस, एक है थायरो एरिथनॉइड, दिख रही है आपको। और मैं आपको इतना बता रहा हूँ, थायरो एरिथनॉइड का ही कई लोग बोलते हैं वोकैलिस जो होता है इसका ही जस्ट एक पार्ट होता है, क्लियर है। तो देखो यहाँ पर आप लोग थायरो एरिथनॉइड को देखो पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ दी, देखो यहाँ पीछे से आ रही है, नहीं आ रही है, पोस्टीरियर पार्ट से, तो पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द एंगल ऑफ द थायराइड कार्टिलेज, देखो एंगल इसे बोल रहा है, एंगल थायराइड कार्टिलेज के एंगल पर है, तो थायराइड कार्टिलेज के एंगल पर है। और साथ ही साथ अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो एंटीरो लेटरल का मतलब लेटरल सरफेस यही होगी, लेटरल, और थोड़ा सा आगे से मैं गलती से इधर बता गया, ये होता है, ये थायराइड कार्टिलेज के इधर इंसर्शन है, इधर की तरफ से क्या इसका ओरिजिन है, क्लियर है।
तो ये यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट मसल्स है, और ट्रांसवर्स के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया। इजीली आप लोग ये वाला डायग्राम ड्रॉ करके आ सकते हो, बहुत सिंपल डायग्राम होने वाला है, और सब अच्छे से एटलीस्ट से तो ड्रॉ करके आते ही आते हैं। ये वाला डायग्राम भी बहुत आसान होने वाला है। देखो ये वाला, देखो यहाँ पीछे की तरफ और स्पेसिफाई करा हुआ है कि ये वाली आपकी पोस्टीरियर होगी, ये वाली लेटरल होगी, ये वाली जो आपको दिख रही है ऑब्लिक एरिथनॉइड होगी। आपको दिख रहा है कि एपिग्लॉटिस है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर जहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है। साथ ही साथ ये एरिथनॉइड कार्टिलेज है, ये वाली ऑब्लिक एरिथनॉइड ट्रांसवर्स है, ये पोस्टीरियर है, ये लेटरल है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग इसे ईजिली लर्न कर सकते हो। सारी जितनी भी आपकी इंट्रिंसिक मसल्स है लेरिंग्स की, उन सबको सप्लाई करते हैं रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, एक्सेप्ट द क्रिकोथायरॉइड विच इज सप्लाइड बाय द एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व। याद रख लेना, बाकी सबको पूरी को कौन करेगी? रिकरेंट रिकरेंट रिकरेंट, सारी रिकरेंट, सारी इंट्रिंसिक रिकरेंट। बट एक है एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व, किसको सप्लाई करती है? क्रिकोथायरॉइड को। किसको सप्लाई करती है? क्रिकोथायरॉइड को। किसको सप्लाई करती है सर? क्रिकोथायरॉइड को। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, क्लियर है। और अच्छा, क्रिकोथायरॉइड का काम क्या था? इट इज द टेंसर। देखो क्रिकोथायरॉइड का काम क्या था? टेंसर है, टेंसर है, क्लियर है। तो अगर क्रिकोथायरॉइड का वो हो गया, मतलब नहीं काम करेगी, पैरालिसिस हो गया, तो क्या हो पाएगा? आवाज़ में टेंसिंग यानी कि जो पिच होती है वो अच्छी नहीं आ पाएगी, क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसलिए उसे ट्यूनिंग फॉर्क मसल भी कहते हैं। इसलिए क्रिकोथायरॉइड मसल को क्या कहते हैं? ट्यूनिंग फॉर्क मसल, ठीक है, बिकॉज इट इज एन इंपॉर्टेंट टेंसर ऑफ द वोकल कॉर्ड। याद रख लेना, जो टेंसर होगा वो कैसा होगा? वोकल कॉर्ड की तरीके से, सॉरी, वो होगा क्रिकोथायरॉइड मसल। हमारी बॉडी के अंदर टेंसर कौन है? क्रिकोथायरॉइड मसल, जिसकी वजह से आवाज़ कैसी होती है? ट्यूनिंग फॉर्क जैसी होती है, ट्यूनिंग फॉर्क मसल ऑफ द लैरिंग्स। इसलिए क्या बोला इसे? ट्यूनिंग फॉर्क मसल ऑफ द लैरिंग्स, एंड इट मेंटेन्स द पिच एंड टोन ऑफ द वॉइस। क्लियर है, सिंपल। सबके में अलग अलग तरीके की होती है, अलग अलग बल्क वगैरह, मास वगैरह, उसकी वजह से होती है वो बात, ठीक है। सेफ्टी मसल्स ऑफ द लैरिंग्स, पोस्टीरियर क्रिकोइड। अब समझ में आया क्या बोल रहा था? पोस्टीरियर क्रिकोइड नेट इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज द ओनली एबडक्टर, और एबडक्टर होगा तो इससे क्या होगा? जब भी ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी, इससे मस्कुलर प्रोसेस अंदर की तरफ आएगी और वोकल प्रोसेस खुल जाएगी। और वोकल प्रोसेस अगर खुल गई, सोचो कि यार मस्कुलर प्रोसेस और दो थी, वो मस्कुलर प्रोसेस वोकल प्रोसेस थी। अगर मस्कुलर प्रोसेस अंदर की तरफ आती है और वोकल प्रोसेस खुल जाएगी, यानी कि वो बाहर की तरफ जाएगी, तो इससे क्या होगा? जो रीमा ग्लोटाइटिस है वो दिखने लगेगा, ठीक है। अब रीमा ग्लोटाइटिस क्या होता है लैरिंजियल इनलेट के अंदर, हम ये पता लगा लेंगे। बस इतना याद रख लो अभी एट प्रेजेंट कि जो एयर है, जो ट्रैप थी, वो कहाँ जा सकती है? अंदर जा सकती है, क्लियर है। और यही है जो एंट्री ऑफ द फूड को प्रिवेंट करती है, क्लियर है, अंदर जाने से। ओके, सो अब अगली जो सेकंड पार्ट आएगा उसके अंदर हम लोग लैरिंजियल इनलेट के ऊपर बातें करेंगे। टिल देन गुड बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो थैंक यू, और यदि आप सेकंड पार्ट भी देख करके जाना, ठीक है। ओके, बाय।